Okay, so we'll go through Windows function today. Okay, so anyone knows like what are the Windows functions and क्या है? कुछ idea है? No. Okay. Window mean क्या होता है पता है? In SQL here Windows function का window means we are just dividing a particular table or screen into multiple. Like this is a particular table, right? तुम जब इसको डिवाइड करते हो पार्ट पार्ट में कि मुझे मैनेजर आईडी के हिसाब से विंडो दिखाओ, तो 8 का आ जाएगा, 3 लेके एक विंडो आ गया। इसको डिवीजन करते हो, जस्ट लाइक ग्रुप बाय करते हो, राइट? ग्रुप बाय करते हो, इसमें भी सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। इसमें विंडो फंक्शन के थ्रू हम लोग डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप्स को। ठीक है, सपोज डू वी हैव एनी टेबल, लेट मी चेक। So let me take this table window example. Okay, so you have order ID. Just understand the table first. You have order ID. Okay, you have order date, order ID, order date, customer name, city, and order amount. Okay, okay, so this is as a whole call window. This result set is a call window. So a window is basically a set of rows in a table or result set. In a table you may have more than one windows depending on how you specify the query. Okay, how you write the window function, based on that you will have multiple windows. Okay, and multiple windows means kya? How you are specifying the row conditions. Like if you want only city wise window. Okay, so order by city. एक बार दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ताकि सीक्वेंस पे रहे. So Chennai, this is one window. It's created entire rows as a window. This all rows created as a window, and this will be created as a window. अगर तुम city को as a window divide करते हो, you can divide name also window, you can divide date also window. अगर name से करते हो तो every row will be creating a window. Okay, समझ में आया ये अभी तक कि windows का मतलब क्या है? Function are predefined in SQL. Function already we tried, right? Average, max, ये सब हम लोग already try किया. तो aggregate, इसको बोलते हैं aggregate function. तो functions are predefined in SQL. ये already रहता है. Operations in data, you can perform operations, many operations in data, like on data, and they let you do things like aggregation data, formatting strings. क्या था ना, substring format क्या था वो सब, extracting dates, and so on. So Windows function और SQL function. So overall अगर मैं दोनों को मिला दूं, so window and function मिलके Windows function और SQL functions that enable us to perform operations on a window. तो window का जो मैं concept दिया, window को हम लोग divide कर सकते हैं based on our requirement, customer name या city से भी. तो ये window जैसे मान लो city को हम लोग window बना लिया, तो ये 3 window हो गया. इसमें अगर कुछ perform करना है, function suppose max based on city, तो city चेन्नई का max हो गया 1,50,000, दिल्ली का max हो गया 1,40,000, हैदराबाद का मैक्स कितना हुआ 20,000, राइट? सो मुझे वो 3 रिकॉर्ड्स आएंगे. सो विंडो के थ्रू वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस. ओके, तो विंडो के थ्रू हम लोग जब वो सब यूज करते हैं, हियर ग्रुप बाय आल्सो वी कैन यूज, राइट? यू रिमेंबर ग्रुप बाय के थ्रू हम लोग कर रहे थे, बट आई विल आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड विंडो फंक्शन. जैसे अभी तक समझ लो कि हम लोग विंडो में डिवाइड करते हैं एंड वी अप्लाई फंक्शन, दैट इज कॉल्ड विंडोज फंक्शन. So below are 3 main type of SQL window function. Okay, aggregate window function, ranking window function, and value window function. Aggregate is nothing but you all know. इसको अप्लाई करेंगे विंडोज के साथ. सिंपली जब एग्रीगेट कर रहे थे तब हम लोग इजीली कर रहे थे, जैसे मैक्स ऑफ सैलरी.
सो ये था एग्रीगेट फंक्शन, राइट। मैक्स ऑफ ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, मैक्स का आ गया था। We cannot use average in group by, right? ग्रुप बाय सिटी, Group by in average. Group by in average. हाँ So राइट, group by एवरेज। in average. सो जस्ट सिटी नाम देता हूँ और AVG, ठीक है। इस सिटी का एवरेज सिटी वाइज गिव मी द एवरेज, ओके। सो इट विल गिव मी द एवरेज सिटी वाइज, okay. So what it is doing, it is finding out this average, this average and this average and giving you 3 results, okay। चलो ठीक है, अब एवरेज का हो गया। रैंकिंग, ये हम लोग आज गो थ्रू करेंगे एंड वैल्यूज विल गो थ्रू नेक्स्ट क्लासेस, ओके। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। सो यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, बट आई विल गो थ्रू लाइक हाउ टू अप्लाई दिस थिंग्स विद द विंडो फंक्शन। ग्रुप बाय के साथ तुम लोग ने देख लिया, एंड रैंकिंग, ओके। चलो सपोज अभी मैं एवरेज का जब गो थ्रू करूंगा, ऑलरेडी यू नो दिस, राइट। सो जब रैंकिंग के थ्रू उसमें जाएंगे, देन ओनली विल एक्सप्लेन दिस, बट यू ऑलरेडी नो, राइट, व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज मैक्स, व्हाट इज मिन, यू हैव आइडिया, राइट। सम क्या होता है, काउंट क्या होता है। सो रैंकिंग के बारे यस, में यू डोंट नो, सो विल गो थ्रू रैंकिंग इसमें भी फर्स्ट। ग्रुप बाय तो नहीं अप्लाई होगा ना नहीं होगा, एग्रीगेट पर। नहीं, इसमें डिफरेंट, बट आई विल टेल यू द डिफरेंस, ओके। बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर दिस, especially leave entire for now. For this row number, rank, dance rank, percentage rank also for now leave it. First three, these are vastly used, okay. Mostly you will see this only. So row number, what row number do, row number assigns a sequential number to each row in the result set. जैसे ये है ना एक नंबरिंग, ये रो नंबर है ना, इसी की तरह सीक्वेंस में रो नंबर एक एक नंबर असाइन कर देता है, एक डिफरेंट कॉलम बना के। एंड व्हाई यू नीड, अगर तुम ऑर्डर बाय करते हो तब भी तो तुम्हारा रो नंबर अच्छे से आ रहा है, तब तुमको रो नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग विंडोज के थ्रू मल्टीपल विंडो बना के भी रो नंबर ला सकते हैं, कि चेन्नई का रो नंबर दिखाओ 1 2 3, देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली 1 2 3, हैदराबाद 1 2 3 4 5, लाइक वी कैन अप्लाई द रो नंबर ऑन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, समझे। इसमें तो एक ही में है ना, पूरा एंटायर में है, उसमें हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं, समझ गए। सपोज यहाँ पे मेरे को कहा गया, यहाँ पे मेरे को अभी मुझे चाहिए कि मेरे को हैदराबाद का भी 1 से लेकर नंबरिंग करके दिखाओ कितना है। तो यू कैनॉट डू विद दिस, राइट, दिस इज ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग, सो यू नीड टू अप्लाई समथिंग। तो इसलिए रो नंबर हम लोग यूज करते हैं। विल गो थ्रू द एग्जांपल। देन रैंक, रैंक इच रो, चलो रो नंबर को एक बार एग्जांपल देख ही लेते हैं। सो क्या होता है इसका, मान लो सिंटेक्स ये, तो मुझे विंडोज फंक्शन, अभी इसमें क्या चाहिए मुझे, रो नंबर, राइट। विंडोज फंक्शन मेरा आ गया रो नंबर, इसी को लेते हैं, ओके। ओवर पार्टीशन बाय, किस से पार्टीशन करना है मुझे, किस कॉलम से पार्टीशन चाहिए, सिटी से, राइट। सिटी को पार्टीशन करके हम लोग इसको विंडोज फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि ग्रुप बनाओ, किस टेबल से, विंडोज एग्जांपल से, राइट। एंड हम लोग को साथ में क्या क्या कॉलम चाहिए दिखाने के लिए, तो ऐसे लिख दो कि सिटी चाहिए मुझे, और या स्टार लिख दो, सब चाहिए मेरे को, नहीं तो ये हार्ट स्टार लिख दो, ठीक है, सारे कॉलम आ जाएंगे और रो नंबर आ जाएंगे। इफ आई रन दिस, ओवर क्लॉज विद ऑर्डर बाय, ओके। रो नंबर में ऑर्डर बाय इज मैंडेटरी, ओके। आई थिंक आई हैव रिटन देयर कि ऑर्डर बाय इज मैंडेटरी,
ओके, रो आल्सो मैंडेटरी। ओके, ऑर्डर बाय क्या चाहिए मेरे को? ऑर्डर बाय क्या था वो? ऑर्डर अमाउंट। ओके, ऑर्डर बाय ऑर्डर अमाउंट कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। सो अभी तुमको समझ में आया क्या मैं बोल रहा था? कि सिटी का नाम से मुझे 1 2 3 दो, दिल्ली के नाम से, और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ रो नंबर। ठीक है, एज रो नंबर। सो 1 2 3 एंड ऑर्डर बाय अमाउंट किया था मैंने, इसीलिए ऑर्डर बाय अमाउंट दिखा रहा है असेंडिंग में। डिसेंडिंग करूंगा तो देखो, असेंडिंग मतलब उस पर्टिकुलर विंडो ग्रुप में असेंडिंग कर रहा है, हैदराबाद का असेंडिंग कर रहा है, इसका असेंडिंग कर रहा है अपने में ही। सो इट क्रिएटेड 3 विंडोज इटसेल्फ। अंडरस्टूड? इसको मैं अगर डिसेंडिंग कर दूंगा तो ये ऑर्डर बाय डिसेंडिंग दिखाएगा सैलरी को। देखो, सो रो नंबर के थ्रू वी कुड अचीव ए सेपरेट विंडो ग्रुप्स एंड फाइंड गेट द रिजल्ट। समझ में आया? एक बार गो थ्रू करो रिजल्ट सेट को, एंड कुछ भी समझ में नहीं आता पूछो, एक बार गो थ्रू करो इसको। सपोज ऑर्डर बाय, मेरे को ऑर्डर बाय कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर नेम। अब देखना क्या होगा, अब क्या होगा पता है? ये रोल नंबर देगा, ऑर्डर बाय देगा कस्टमर नेम के हिसाब से, नॉट ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, असेंडिंग रहने दो। देखो, डी एन, देखा? देखो एग्जांपल, जैसे हम लोग उल्टा हो गया ना, 1000 7000 फिर 20000 फिर 5000। सो इट इज गिविंग बेस्ड ऑन योर जैस्मीन मोनिका जे एम एन आर। सो इफ यू सी डिसेंडिंग इट विल बी वाइस वर्सा। सो ऑर्डर बाय इज जस्ट टू गेट द ऑर्डर्ड वैल्यू। डेट के हिसाब से भी कर सकते हो, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर बाय बोल रहा है मस्ट। ठीक है, तो रो नंबर पे ऑर्डर बाय दे दो, तो द फंक्शन रो नंबर इसमें ही मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, यू अंडरस्टूड रो नंबर नाउ? कुछ डाउट है इसमें? इजी है राइट? दिस इज वेरी इजी राइट? ना ना, कुछ डाउट है अनामिका, कुछ डाउट है? ये तुमने जो एस्टिक के बाद कॉमा लगाया, ये नल वैल्यू को अवॉइड करने के लिए है? किसका? ये स्टार सिलेक्ट ऑल के बाद जो कॉमा है, नल वैल्यूज को हटाने के लिए किस लिए है ये? अरे दूसरा जब कॉलम हम लोग लिखते हैं तो कॉमा देते नहीं है क्या? जैसे ऑर्डर आईडी, और ऑल फ्रॉम होता है ना, ऑल फ्रॉम तो होता है। देखो दिखा रहा हूँ, ऑर्डर आईडी फिर सिटी एक साथ लिखता है ना, कॉमा देता है। हाँ, कॉलम लिखता है तो कॉमा देता है राइट? यू आर क्रिएटिंग हाँ, दिस रो नंबर एज ए कॉलम राइट? ये आर एन लिख दिया ना, एज ए आर एन। याद है जब हम लोग ये लिख रहे थे तो इसमें कॉमा नहीं दिया क्या हम लोग? यू तो रिमेम्बर? फिर एस्टिक हुई ना। दिस इज एब्स्ट्रिक्ट में दिया था ताकि पूरा एंटायर कॉलम आए। इसमें भी दे सकता हूँ, इसमें एब्स्ट्रिक्ट देने से ग्रुप बाय में क्या होगा, जितने भी कॉलम है ना सबका नाम ग्रुप बाय में लिखना पड़ेगा। सी, अगर मैं, क्योंकि ग्रुप बाय में क्या होता है, इसमें लिखना पड़ता है सारा नाम, तो जितना भी मेरा इसमें एग्जांपल्स में है उस सबको लिखना पड़ेगा। देखो, इसमें स्टार क्यों नहीं देख सकते पता है? इसमें स्टार देने से क्या हो रहा है, क्योंकि एवरेज, क्योंकि हम लोग जब स्टार लिख रहे हैं ना, इस वाले चीजों में जब ग्रुप बाय होता है, देन स्टार मींस इट इज टेकिंग ऑल द कॉलम्स। तो इसमें ऑर्डर अमाउंट भी आ जाता है ना? यू अंडरस्टूड? स्टार मतलब ऑर्डर अमाउंट भी आ जाता है। तो इसीलिए ग्रुप बाय में हम लोग को डिफाइन करना होता है कॉलम, बिकॉज इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग एनी कॉलम, सो ये जो एवरेज के साथ है ना, ये वाला जो कॉलम है इसको भी स्टार में इंक्लूड कर लिया, मतलब ये भी है, स्टार मींस ये हो गया।
तो देखो ये स्टार मीन्स हो गया ये सिटी ऑर्डर अमाउंट, ये पूरा एंटायर कॉलम प्लस तुम्हारा एवरेज। अभी तुम एवरेज किसका निकालोगे, किसके बेसिस में, ये ऑर्डर अमाउंट भी तो आ गया, तो इसीलिए एवरेज दे रहा है, ये पर्टिकुलर एक एक का ही एवरेज दे रहा है, इसी का एवरेज निकाल के दे रहा है। इसीलिए इसको टैकल करने के लिए हम लोग इसमें ग्रुप बाय में स्टार नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो जो अपना कॉलम है जिसमें हम लोग विंडोज एग्रीगेट, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन, ओके, ये विंडोज फंक्शन नहीं है। तो एग्रीगेट फंक्शन जहाँ पे लगा रहे हैं उसमें हम लोग को कॉलम का नाम देना होता है, ताकि हम लोग को इजीली वही चीज मिले जो कि रिक्वायर्ड है। या तो कस्टमर नेम भी डाल सकते हो इसमें, कस्टमर नेम, या तो नहीं कुछ भी दूसरा डाल दो जो कि मल्टीपल होगा। तो अब सिटी के हिसाब से किया तो आ गया। बट विंडोज फंक्शन में क्यों मैं स्टार दे सकता हूं, बिकॉज ये इस पर्टिकुलर आइटम को लेके इसमें ग्रुप बाय डालना पड़ रहा है, लेकिन इसमें ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये इसी सिलेक्ट में ही इसको पार्टीशन कर रहा है। देखो ये पार्टीशन, डू ए पार्टीशन, डू ए पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जब तुम लैपटॉप लेके जाते हो पार्टीशन करके देता है ना, लैपटॉप में यू हैव ए पार्टीशन राइट, दीज आर पार्टीशन राइट, सी Right. ड्राइव है, दीज डी ड्राइव, तो ये क्या हो गया, एक एक डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन बना दिया ना, तो उसी को भी पार्टीशन बना देता है। पार्टीशन बाय किस से बना रहे हैं हम लोग, सिटी से बना रहे हैं, तो सिटी से पार्टीशन कर दो मुझे। तो इसमें मैं स्टार भी लिखूंगा ना, जो भी लिख सकता है तू, इसमें स्टार भी लिखूंगा चलेगा, क्योंकि इसमें ग्रुप बाय में जैसे हम लोग ऑर्डर अमाउंट मस्ट लेना था, क्योंकि स्टार लिखने से वो चीज इसमें नहीं है। इसमें तुम स्टार को एज ए नया कॉलम ही ले लेते हैं एक आर्यन का, डिफरेंट पार्टीशन करके, irrelevant ऑफ व्हाट यू आर डिक्लेयरिंग इन सिलेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसको हटा भी दूं पूरा, देख आ रहा है, तो इसका उसके साथ रिलेशन ही नहीं है कुछ भी, इसमें तुम ऑलरेडी सब कुछ रिलेट कर रहे हो इधर ही, कि भाई मैं इसके बेसिस में पार्टीशन करो, और ऑर्डर बाय द ऑर्डर टेबल में जो मेरा है बस, ओके। सो अंडरस्टूड नाउ व्हाट रो नंबर इज डूइंग, एंड इट इज मोस्टली यूज्ड विद सीटीई। सीटीई जब आएगा मैं रो नंबर का और एक बार गो थ्रू करके समझा दूंगा, ठीक है। सो रो नंबर पार्टीशन करके ये रो नंबरिंग कर देता है मुझे सीक्वेंशियल नंबर, ओके। सो नाउ मूव ऑन टू rank. It ranks each row in the result set. If value in the ranking column are same, they receive the same rank, okay. If the value of the ranking columns are same, they receive the same rank. Suppose if you are seeing this screenshot, okay, this is example of rank, okay. If you see value bb same, so it is taking 2 2, right. CC same, it is taking 4 4 3, right, 4 4. But if you observe here, rank is skipping the 3, so based on value it is giving me number, but it's skipping the sequential number. देखिए जैसे 2 3 4 होना चाहिए था, 3 हटा दिया, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद देखो 4 5 6 फिर 7, तो लेकिन 5 6 नहीं है मेरा, समझ रहे हो। सो इसमें लिखा however the next number in the ranking sequence is skipped. The if value in the ranking columns, समझो, if the values in the ranking column are the same, they receive the same rank, 1 2 3 same rank. However the next number in the ranking sequence is skipped, मतलब वो स्किप कर देता है, जैसे दो बार आएगा ना, एक स्किप कर दिया, ये 3 बार 4 आ गया तो स्किप कर दिया दो, बाकी 2 को। अगर सीक्वेंस में आ गया तो स्किप नहीं करेगा, 1 के बाद 2 ही आया देखो, अगर ये 1 1 आता तो 2 को स्किप करके 3 कर देता। द फंक्शन रैंक मस्ट even order clause also, okay। जिसका एग्जांपल देखते हैं, उसके पहले मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, डेंस रैंक और इसमें डिफरेंस क्या है। डेंस रैंक में भी 2 2 ही करता है, सेम है, बी को 2 2 कर दिया, बट इट डजंट स्किप द सीक्वेंशियल वैल्यू, इसमें 4 आ गया था ना, इसमें 3 आएगा। डेंस रैंक एक्चुअली इट रैंक्स ईच रो इन द रिजल्ट सेट, ओके, इट रैंक, ये रैंक बनाता है,
if values in the ranking column are same, they receive the same rank. The next number in the ranking sequence is then used to rank the row and the rows that follows. ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जाम्स इन मार्क उस दिन समझाया था. सेम पर्सन, दो पर्सन को सेम मार्क मिल सकता है, सेम रैंक हो सकता है वो, राइट. अगर आउट ऑफ 300 two people got like the first division mark, like first in the class, first class mark is 290 out of 300 and two person got that 290. So ये है क्या कि एक को फर्स्ट रैंक देंगे, दूसरे को सेकंड रैंक, ऐसा देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना, दोनों को एक ही रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक. सो इसमें वही सिनेरियो है. बट जो 290 के नीचे वाला है, सपोज 280, उसको सेकंड रैंक मिलेगा, राइट, ना कि थर्ड रैंक. इसमें तो थर्ड हो जाता उसका, क्योंकि स्किप कर देता. सो ऑन दो सिनेरियोज वी यूज डेंस रैंक, जहां पे हम लोग को सीक्वेंस को मेंटेन रखना है विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेसी को भी मेंटेन रखना है, सेम रैंक देना है, प्लस सीक्वेंस को भी सेम मतलब मेंटेनेंस रखना है कि 2 के बाद 3 दिखाए. डेंस वी यूज डेंस रैंक. और जहां पे तुम्हारा सीक्वेंस को मेंटेन नहीं रखना है, वी कैन स्किप. इस सिनेरियो में हम लोग को रैंक यूज करते हैं. चलो रैंक का एक बार देख लेते हैं. So now we'll go to rank, right? So you understood till now rank and like dense rank differences? So इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा क्योंकि कुछ कुछ चीजें मतलब इतना ऑप्शनल है. सपोज पार्टीशन बाय यू कैन राइट और नॉट राइट, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, क्योंकि that is important when you are using this रो नंबर. अदरवाइज क्या होगा पता है? देखो, अदरवाइज रो नंबर तुम्हारा एज यूजुअल ऐसा ही हो जाएगा जैसा था. ये जैसा है आईडी नंबर सिमिलर ही है, राइट. इसमें पार्टीशन की जरूरत है क्योंकि तुमको रो नंबर चाहिए एज पर सेगमेंट, सिटी के वाइज चाहिए. तो पार्टीशन बाय इज नथिंग बट, और ये हमेशा सीक्वेंस याद रखना, कुछ भी लिखोगे रो रैंक या डेंस रैंक वो आएगा इधर फर्स्ट. ठीक है, रो नंबर, रैंक या डेंस रैंक. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? इसको ऐसे देते हैं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वो ब्रैकेट हर जगह यूज होता है. हाँ, ऐसा आएगा. फिर क्या आएगा? फिर तुमको एक ये देना पड़ेगा, पैरेंथेसिस ऑन एंड क्लोज. ये कहाँ कब यूज होता है ये भी बताएंगे बाद में, ये एडवांस लेवल का ये. और उसके बाद ओवर दे दो. ओवर किसके ओवर करना है? ओवर के साथ ही पैरेंथेसिस शुरू होता है और इसके अंदर हम लोग को पार्टीशन बाय, अगर मैंडेटरी नहीं है, अगर तुमको लिखना है तो लिख सकते हो इधर पार्टीशन बाय. पार्टीशन मतलब पार्टीशन कर रहे हो तुम्हारे डेटा सेट को, पार्टीशन बाय उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम डाल दो. ठीक है, फिर ऑर्डर बाय, इसमें किस कॉलम से ऑर्डर करना है उसका नाम डाल दो. और जब सब कॉलम से एक एक बार करते जाओगे ना, तुमको खुद ही पता लग जाएगा क्या है, क्या करना है. ठीक है, ऐसे होगा. मतलब ये सारा तुम्हारा बाय डिफॉल्ट उधर का ही है चीजें यहाँ तक. यार तुम तो फंक्शन के साथ ही लिखना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट बाय हार्ट कर लेना. इधर बस पार्टीशन किससे करो नाम लिखना पड़ता है कॉलम का, एंड देन ऑर्डर बाय आल्सो फ्रॉम दैट सिंटेक्स ओनली. उसके बाद ऑर्डर बाय किससे करना है उसका नाम लिख लो बस, एज आर एन. ये अगर याद रखो सिंटेक्स तो तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा. सभी रैंक पे चलते हैं. तो रो नंबर पे हम लोग देखा कि पार्टीशन तो भाई थोड़ा जरूरी है, राइट, क्योंकि अदरवाइज विल गेट द सेम नंबर्स. सो इसीलिए हम लोग ने सिटी से पार्टीशन किया, रिक्वायरमेंट जैसा हो उस टाइप से. कोई बोले कि आई नीड द रो नंबर्स बेस्ड ऑन लाइक डिफरेंट सिटीज, तो दे दिया तुमने. अब मान लो रैंक चाहिए उसको. अब मैं इसमें क्वेश्चन आएगा कि भाई मुझे रैंकिंग कर दो जो भी मेरा विंडोज एग्जांपल में डेटा है. सपोज आई नीड रैंकिंग ऑफ दिस आइटम्स. सो मेरे को पार्टीशन करने की जरूरत ही नहीं है. द क्वेश्चन इज कि मुझे रैंक दो.
मतलब कौन फर्स्ट में कौन सेकंड में है? ये ऑर्डर आईडी की तरह तो नहीं होगा ना, ऑर्डर आईडी इज फर्स्ट कॉलम का, वो तुम लिख सकते हो ऑर्डर बाय, जैसे पहले लिखा था ना ऑर्डर बाय सिटी की जगह तुम ऑर्डर अमाउंट लिख सकते हो। लेकिन तुमको डुप्लीकेसी जब आता है ना अमाउंट, तो उसमें तो ये धोखा दे देगा। क्योंकि देखो जैसे डिसेंडिंग लिख दोगे तो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन कम टू नो कि देखो फर्स्ट में 25 है, इसमें 22 है, 7000 में 5 है, 7000 में ही 6 है ना, सेम है, सेम में भी ये डिफरेंट एक सीक्वेंस में जा रहा है बस। लेकिन मुझे सीक्वेंस में नहीं चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए कि भाई रैंक करो, मुझे रैंक करके मुझे दो कि भाई ये कितने रैंक पे है, दोनों डुप्लीकेट है तो एक ही रैंक आएगा। तो तब मुझे पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। आई एम लाइक, जब पार्टीशन वर्ड नहीं लिखते हो, राइट, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। व्हेन यू डू नॉट राइट द पार्टीशन नेम, तो बाय डिफॉल्ट एंटायर टेबल बिकम ए पार्टीशन। समझ गए? जब तुम पार्टीशन नहीं लिखते हो ना, तब भी पार्टीशन हो रहा है, एंटायर टेबल ही एक पार्टीशन हो जाता है, कि एक टेबल को ही एक पार्टीशन बना देता है। और पार्टीशन लिखते हो, सिटी को बना दिया पार्टीशन, देखो सिटी के हिसाब से ऑर्डर अमाउंट को मुझे दे दिया 1 2 3। इफ यू सी नाउ 1 2 3, इफ यू नीड गिव मी रैंकिंग बेस्ड ऑन सिटी, तब मेरे को ऐसे मिल जाएगा रैंकिंग। अगर इसमें भी कुछ डुप्लीकेट होता ना, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है सिटी का, जैसे although you see duplicate of 2500 2500, but it's on different city, right? तो इसीलिए मेरा रैंक सिक्वेंशियली आ रहा है। सपोज दिल्ली में ही और एक रो होता 2500, तब इसको क्या करता हो, हाँ वो 33 आ जाता। अगर दिल्ली में ही एक डिफरेंट रो होता 14,000 का, तब 22 आता और इसमें 4 आता, रैंक जब करो तो। Okay, so now I'm just removing partition, I'm taking entire table as a partition and just running this. ठीक है, now you will see, I'll show the example with the partition also, but I'm just going through now this. Okay, so अगर तुम इसको देखो अभी, so it is giving you rank based on order by order amount and partition entire table. So पूरे उसी को एक पार्टीशन बना के मुझे रैंक दे रहा है। जैसे फर्स्ट में है मेरा 2500, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देखो फिफ्थ आ गया, 7000 अगेन है फिफ्थ। तो फिर इसको स्किप किया, 5 6 7 है ना, स्किप कर दिया 6 को और 7 आ गया, देन 8 9 9 10 को स्किप कर दिया, 11 आ गया। समझ गए? अगर सेम ही चीज में डेंस रैंक पे लिखूं तब देखना डिफरेंस। तो कब डेंस में लिखना है, कब से रैंक पे लिखना है, दैट इज अ बिग लाइक यू नो थिंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि तुमको अगर रैंकिंग सिस्टम बोला कि मार्क बोलो, देन यू मस्ट लर्न विद डेंस रैंक। रैंक से तुमको फिर ओ, जैसे तुम्हारा स्टूडेंट का मान लो ये दीज आर मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट को मिला, सेकंड सेकंड को मिला, थर्ड थर्ड को मिला, 7000 मिला एक स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट को भी 7000 मिला चेन्नई से, और एक हैदराबाद से 7000 मिला। तो दोनों का रैंकिंग फिफ्थ होना चाहिए ना, फिफ्थ सिक्स तो नहीं होगा ना, वो तो फाइट करेगा फिर कि सर आई ऑल्सो गॉट 5000 7000, ही ऑल्सो गॉट 7000, देन हाउ कैन आई बिकम सिक्स्थ, वी आर सेम राइट। सो उनका रैंकिंग सेम होना चाहिए। फिर ये 7 वाला बोलेगा यार मेरा तो 5000 आया जस्ट आफ्टर द फिफ्थ रैंक, आई शुड बी इन सिक्स रैंक, व्हाई यू आर गिविंग मी 7 रैंक, राइट? सो तब हम लोग को डेंस रैंक चाहिए कि भाई देखो 1 2 3 4 5, 5 को दोनों को 7000 मिला तो दोनों फिफ्थ रैंक पे, उसके नेक्स्ट वाले को सिक्स रैंक पे। इफ यू सी 8 8 10 9, ओके, प्रीटी इजी, राइट? यस। अब मैं इसमें Yes. इंसर्ट करता हूँ एक और, इंसर्ट इनटू, ठीक है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था सिटी वाइज, ताकि पार्टीशन के साथ कैसा होता है, पार्टीशन में भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें, उसको भी समझा देता हूँ। पार्टीशन बाय सिटी, तो इंसर्ट इनटू, क्या पे इंसर्ट करना है इसमें, ठीक है, वैल्यूज क्या इंसर्ट करना है मुझे,
ऑर्डर, उसके बाद क्या है, सिटी. So I am just checking what was my similar 14 Delhi, right? So only Delhi only I am typing 14,000. Okay, so that it give me give you an idea what I'm trying to show. Okay. फिर अमाउंट क्या देंगे, 14,000. ठीक है, इंसर्ट कर दूं, दे दिया. अब मैं रन करूंगा, देखो 14,022. इट इज गिविंग मी नाउ सिटी वाइज, क्योंकि मैंने पार्टीशन बाय यूज किया. अगर सेम थिंग मैं यहाँ पे यूज करूंगा पार्टीशन बाय, इसमें क्या रिजल्ट आएगा बताओ, कौन बताएगा डेंस रैंक पे ये क्या आएगा, टेल मी. 4 वाला 3 आएगा। 3. यस, सो इसको करेंगे तो 4 वाला 3 आ गया. ठीक है, अंडरस्टूड. ठीक है, मतलब Yes. यस ये स्किप कर देता है. 2 + 2 तो +2 हो जाता है, +3 मतलब ये +3 कर देता है, इसमें वो स्किप नहीं करता है. ओके. ऑर्डर बाय, गिव द कॉलम नेम. ओके, कॉलम से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कॉलम नेम लिख देता हूँ. ठीक है, सो अभी गो थ्रू करते हैं, नेक्स्ट क्या है. ओके. मेरा गला यार. ओके, सो Windows functions are similar to aggregate function, aggregation done in the group by. So इसमें आ रहा है हम लोग का group by versus Windows function, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, right? However, rows are not grouped. Windows function are similar. It gives you similar things, but the purpose are different for both. Okay. अब मुझे ये बताओ कि एवरेज, मैक्स, मिनिमम तो मैं ग्रुप बाय में भी यूज किया था. सो ये डिफरेंट क्यों है, हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? एक क्वेश्चन आता है, राइट? तो इसके लिए ये है पेज. सो विंडो फंक्शन आर सिमिलर टू एग्रीगेट फंक्शन. इट इज ऑल्सो एग्रीइंग कि ठीक है, एग्रीगेशन की तरह सेम ही है, बट rows are not grouped into a single row in window function. Each row retains their separate entity or identity. जैसे मैं एवरेज का लेके आता हूं नीचे, अभी एवरेज गो थ्रू करेंगे. ठीक है, सो ये था मेरा एवरेज. सो सपोज मुझे इसी को विंडोज फंक्शन में यूज करना है. ठीक है, क्या था एवरेज, जैसे इसमें क्या बोला, one major advantage of Windows function, major advantage of Windows function is that it allows you to work with both aggregate and non-aggregate values at once because the rows are not collapsed together. तुमको याद है जब मैं स्टार लिखा था इसमें, तब मेरे को सब पूरे सारे एकदम वो लिखना पड़ रहा था. अंडरस्टूड? अभी एग्जांपल गो थ्रू किए थे, राइट? जब मैंने स्टार लिख दिया था ग्रुप बाय में, तो मुझे इवन इस ऑर्डर अमाउंट को भी लिखना पड़ रहा था सिलेक्ट में, राइट? इसमें था ना कहीं? नहीं, हटा दिया शायद. ना, यू रिमेम्बर, राइट? जब मैं स्टार लिखा था इसमें सिटी की जगह, यू आस्क मी, राइट, व्हाई यू कैन नॉट राइट ग्रुप बाय में स्टार. तो इसमें पूरे स्टार मतलब सारे कॉलम को लिखना पड़ रहा था इंक्लूडिंग ऑर्डर अमाउंट, जिसके कारण मेरा एवरेज एक्चुअली दिखाई नहीं रहा था. वो एक एक आइटम का, एक एक रो का एवरेज नंबर्स दिखा रहा था. बट इफ वी यूज विंडोज फंक्शन, दैट विल बी नॉट एन प्रॉब्लम फॉर अस. ठीक है, देखो, one of the major advantages of Windows function is that it allows you to work with both aggregate and non-aggregate values. क्योंकि इसमें हम लोग जब ग्रुप करते हैं तब बाकी सारा स्टार नहीं यूज कर सकते हैं, इसीलिए ऑर्डर अमाउंट हम लोग इधर डालेंगे ना, तो फिर ये एक एक लाइन का ही एवरेज दिखाएगा. बट इधर हम लोग ऑर्डर अमाउंट भी डाल सकते हैं, तो वी कैन डू सम अदर एनीथिंग रिक्वायर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर अमाउंट विद हैविंग द एवरेज आल्सो वी कैन डू दैट. सो ये एक फायदा है उसका.
विंडोज फंक्शन का। जैसे इसमें देखो एग्जांपल, सिटी एंड टेम्परेचर, ये मेरे है डेटा, जो टेम्परेचर टेबल था उसका बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको पार्टीशन किया सिटी के हिसाब से, चेन्नई का पार्टीशन, हैदराबाद का, पुणे का पार्टीशन किया, और एवरेज निकाल के लाया पर्टिकुलर सिटी का। एवरेज 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 दे रहा है उस सिटी का। लेकिन इसमें देखो, इसमें तुम्हारा 3 रोज पे दिखा दिया, इसमें जितने रोज थे उतने रोज पे ही पार्टीशन को दिखा देगा। जैसे इसमें ही देखते, गो थ्रू करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये क्या था, ये जैसे हम लोग टेम्परेचर में क्या ऑर्डर अमाउंट में कर लिया, फिर क्या था, ओवर, ओवर वर्ड जो आता है कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या था, पार्टीशन। और इसमें एग्रीगेट में हम लोग को पार्टीशन लिखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि रैंक और डेंस रैंक पे हम लोग पार्टीशन ना भी लिखे ना, एंटायर उसमें हम लोग रैंकिंग कर सकते हैं। दैट वाज पार्टीशन वाज नॉट मैंडेटरी। लेकिन इधर तुम किसका एवरेज दिखा रहे हो, अगर तुम पार्टीशन नहीं लिखते हो तो पूरा एंटायर का एवरेज एवरेज दिखाएगा। ऑर्डर बाय, मान दो सिटी, लेट्स सी। ओके, ग्रुप बाय की जरूरत नहीं है ना इसमें, सॉरी। सो अभी देखो, सो सिटी के वाइज पार्टीशन दे रहा है। अगर मैं पार्टीशन बाय लिखूं तो इसमें ऑर्डर बाय की शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। सी डिफरेंस अब देखना, you need to run with the different ways so that you yourself can understand, okay क्या है डिफरेंस आ रहा है इसमें, क्या हो रखा है। अगर तुमको इसमें थोड़ा सा, रुको, बड़ा कैसे होगा, देखो पहले के लिए क्या था 8666, फिर इसके लिए चेंज हो गया, इसके लिए चेंज हो गया। कैसे काम कर रहा है अभी दोनों, समझो चीजों को, ठीक है। विल नाउ कैलकुलेट कि हाउ इट इज वर्किंग जब मैं ओनली ऑर्डर बाय लिख रहा हूँ और पार्टीशन लिखना, लिखते टाइम क्या हो रहा है। 2500 प्लस 25,000 प्लस 14,000 प्लस 14,000, इतना हो गया कितना, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज ओनली माय एवरेज, राइट। ओके, सही आ रहा है दिल्ली का। बट इसमें तुम्हारा 11,642 क्यों आया, बताओ। ओके, पार्टीशन बाय में करेक्ट आया। इवन नीचे का भी देखोगे, चेन्नई का भी देखोगे, 15,000। let me just write down in some Excel rather than calculating here manually. उसमें क्या ये 14,000 वो नहीं लिया क्या, ऐसा है? We'll go through now, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखिए कि कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं। सपोज ये रिजल्ट सेट हो गया मेरा पार्टीशन बाय का, और ये हो गया मेरा ग्रुप बाय का, ठीक है। दिस इज ग्रुप बाय and this is partition by, okay। now let's go through, बाकी का तो ऐसे भी जरूरत भी नहीं है। okay, so for average if you see this average 866 coming correctly, average 13 it is wrong, then इसमें करेक्ट आ रहा है, then average हैदराबाद 71 करेक्ट आ रहा है। इसमें क्या कर रहा है पता है, ये देखो क्या है, समझ गए, चेन्नई एंड दिल्ली कंपाउंड समझ गए ना। और इसमें देखो 97, so it is averaging out the groups once increased, like it is
इंक्लूडिंग group दैट setting. पर्टिकुलर ग्रुप इनटू द एवरेज। ये पहले था सिटी का ऑर्डर बाय लिखा था इसीलिए, तो इसने मुझे इसका एवरेज दे दिया। ठीक है, अब जब मैं सिटी को दिल्ली के मर्ज कर दिया तो इसका एवरेज दे दिया, और पूरे को दे दिया तो इसका एवरेज। तो जब तुमको अगर ऐसा सिनेरियो हो देन यू नीड टू राइट लाइक दिस। अगर इस टाइप का सिनेरियो तुमको रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। सो ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर सिटी का एवरेज, देन यू मस्ट यूज पार्टीशन बाय। ओके, तो मोस्टली प्रेफरेबली ये पार्टीशन बाय ही यूज होगा मोस्ट ऑफ द केसेस। ये तो बहुत कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है यार, ये पूछेगा भी नहीं ऐसा सिनेरियो, बट आई जस्ट शोड यू एन एग्जांपल like what are the difference. Okay, you can simply write partition to achieve your goal कि मुझे partition कर दो सिटी का and just give me minimum और maximum और average। so देखना इसका minimum क्या है 4000, so it is giving you 4000। इसका दिल्ली का क्या है minimum 2500, इसका क्या है 1000 का है, ये रहा एवरेज। सो अभी डिफरेंस बता रहा था मैं। ओके, विल गो थ्रू अ डिफरेंस। सो नाउ इफ योर सिनेरियो कम्स जहां पे तुमको एवरेज भी निकालना है एंड यू नीड दिस एवरेज ऑफ ऑर्डर, जस्ट गिविंग ए नेम टू हियर सो दैट कॉलम नेम का वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, दिस नो कॉलम नेम। ओके, सो नाउ ओके यहाँ पे देना था ना एवरेज, ग्रुप बाय का था ये। ठीक है, सो नाना यू हैव द क्वेश्चन लाइक अगर ये ग्रुप बाय में यूज कर सकते हम लोग, इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, समटाइम दे नीड डेटा लाइक दिस कि मुझे को ना इतना भी ग्रुपिंग मत कर दो, आई नीड एंटायर डेटा जस्ट टू सी माय डेटा हाउ इट्स। ठीक है, और मुझे एवरेज भी चाहिए, जैसे ऑर्डर एमन भी देखना है, मुझे एवरेज भी देखना है, देन यू कैन यूज दिस थिंग्स। इसको मैंने हम लोग ने और एक तरीके से भी किया था, जॉइन के थ्रू किया था, याद है? अगर सेम चीज हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, जॉइन के थ्रू। रिमेंबर, let me explain. So we were checking like that time inner join जब मेरा पूरा entire table का ही मैंने एवरेज निकाला था, you understood? और उस एवरेज का जो भी ऊपर है या नीचे है वो निकालने के लिए we could use even subquery, even inner join, right? We discussed that. If you go to the last class video you will able to see that. But here the catch is like we are partitioning the city, we are not giving group by here. Partition. ठीक है, वो हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं, इसको भी लिख सकते हो इसके थ्रू, इसमें भी ग्रुप बाय लिख सकते हो, यू कैन यूज ग्रुप बाय। ठीक है, सिटी तो इसमें भी लिख सकते हो, तो देयर आर मल्टीपल वे। सो व्हेन यू विल राइट दिस क्वेरीज यू विल इजीली कम टू नो द लॉजिक्स। सपोज इसमें ग्रुप बाय लिख दो, सो नाउ दिस पर्टिकुलर आइटम विल गिव मी सिटी वाइज एवरेज। ठीक है, अब इसको मैं यूज करूंगा इनर जॉइन के साथ, ऑर्डर एंड सिटी इक्वल टू सिटी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना, इसीलिए वी प्रीफर विंडोज फंक्शन। अभी समझ में आया क्यों हम लोग विंडोज यूज करते हैं? देखो कितना लंबा लंबा हो गया, ये भी लिखो वो भी लिखो, लॉजिक्स लिखते रहो इधर से उधर। तो देखो आ गया चेन्नई का, क्योंकि मोर देन यूज किया इसीलिए ऐसा आ गया। इसको मोर देन की जगह अगर मैं और यूज कर लूं इधर ही, और हमेशा याद रखना व्हेन एवर यू यूज और, इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक प्रोडक्शन इशू हो गया था बिकॉज आई डिड नॉट गिव ब्रैकेट। सो मैंने तब देखा कि और जब नहीं देंगे ना ये कंफ्लिक्ट करता है बाकी के साथ भी। ठीक है, अभी देखना यू विल गेट द सेम रिजल्ट, सी सेम रिजल्ट, इट इज आल्सो पार्टीशनिंग, सी 866 गॉट इट, सब Yes. सेम दे रहा है। इसको तुम ई लगा दो, ई डॉट, देखना एग्जैक्ट सीट देगा। सो वी आर गेटिंग सेम थिंग, राइट? और इसको इससे एक चीज लेके आओ, ई कॉमा ए का था ना, ए का था, मुझे एवीओ ये वाला कॉलम लेके आ जाओ इधर से। आप देखना तुमको रिजल्ट सेट एग्जैक्ट मैचिंग दे देगा। सी 866 फिर 13 फिर 7, राइट? सो वी कैन अचीव दिस थिंग्स, बट you understood or not what I'm telling? Sorry, yeah, it's You keep can on achieve these trying. things, but यहाँ पे तुम्हारा दिमाग लगेगा बहुत, एंड इसमें क्या सिंपल भाई, ये पार्टीशन लिख दो बस हो गया। So that's why I used to tell you, if you know the writing like the syntax and all the SQL things, like
you do practice, lots of practice, you will get like many ways to achieve the same result. देखो मुझे same result मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है. अगर तुमको क्वेश्चन का आंसर देना है तो it is also correct. Who can tell you this is wrong बोल के? You are giving same result set ना. But what is the best feasible way to answer a question? अगर कोई मुझे पूछे कि मुझे एवरेज अमाउंट चाहिए इन एन इंटरव्यू, आई हैव अ टेबल with the city and salary of that person and date. So you give me city wise average salary, a column in a column, but I do not need to group by. I need all the rows available in that particular data set only, and I need the average just nearby my salary or order amount. Okay, order amount. In this case we have used order amount. So that time you can say this also join with the using join, and you can say directly Windows function also, right? And if you have knowledge of both, you can say like, okay, we can use several method here, and first priority I'll use Windows function, and this is the syntax, and secondly I can use the join also. So इसी से पता लगता है तुम कितना एक्सपीरियंस हो सिस्टम पे. If you are not experienced, you'll not tell all those things. If you're experienced, like by that way only they'll come to know. You do not need to give all the syntax explanation. You just tell them, okay, there are several ways to achieve this, and one which I can tell you is like Windows function, another is inner join, and mostly preferably we can use Windows function only because it is pretty easy to write and execute. So that then he will only understand, okay, tell the syntax, then you can tell the syntax, right? So सिमिलर रिजल्ट आ गया. आप देखो इसमें ओवर पार्टीशन बाय सिटी कर दिया मैंने, तो ये सिटी वाइज पार्टीशन दे रहा है. तो सिमिलरली मैं मिनिमम का निकाल सकता हूँ, इसी में मैक्सिमम का निकाल सकता हूँ. मिनिमम आ गया, इसी में इसमें भी मैं मिनिमम निकाल सकता हूँ. सेम इसको भी रन करूंगा. इफ यू सी सेम रिजल्ट कमिंग, राइट? So we can do all the aggregate function. And why we are not using group by, ये एक रीजन है कि मेरे को बाकी भी डेटा चाहिए कुछ दूसरा और एनालिसिस करने के लिए मुझे. Okay, so if I have to show this example, this is a good example. Okay, and then okay, entire भी go through करेंगे. पहले ये समझ में आया कि नहीं बताऊं? Yes. So I'll send this thing also to you. I have written like a rank कैसे लिखते हैं. तो इसमें ये actually nothing but मैं alias दिया था. Okay, alias rank, इसको alias दे देंगे dense rank, then rank. एवरेज का लिख दिया इसमें, ठीक है. फिर एवरेज इज अवेलेबल हियर, एंड देन मिनिमम का भी लिख दिया. सब कुछ इसमें है ही ऑलरेडी, ऑलमोस्ट. मैक्स का भी दे दिया एग्जांपल. सो थ्रू दिस यू कैन इजीली फाइंड आउट. ओके, और जो ब्लू रहता है ना, दैट मींस दैट इज लाइक द वर्ड कीवर्ड उनका, तुमको जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस ये सब में लिखना है, ठीक है. और फिर रैंक का भी ऑलरेडी लिख दिया. इसमें जैसे हम लोग बोला था रैंक के बाद ये ब्रैकेट, तो ये देखो मैक्स के बाद भी ब्रैकेट था, लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे क्योंकि वी आर गिविंग एग्रीगेटिंग फंक्शन, राइट? एग्रीगेट फंक्शन, दैट्स व्हाई कॉलम का नाम लिखेंगे. बट रैंक का हम लोग पूरा ओवरऑल में ही रैंक कर रहे हैं, इसलिए इसमें दे नहीं रहे, ठीक है. रैंक का भी दे दिया. डेंस रैंक ऑलरेडी अवेलेबल हियर, so you can like try and execute also, coming or not. Yes, it's coming. Dense rank, rank. Okay, उसके बाद रो नंबर विदाउट पार्टीशन बाय. ओके, रो नंबर पार्टीशन बाय से कैसे आएगा? फिर विद पार्टीशन बाय. सो मोस्टली यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल हियर. ओके, तो एवरेज का मैं एग्जांपल और एक दे रहा हूँ. सही पॉइंट एक मिल गया मुझे, एवरेज. ओके, आई विल गिव एन more example here. Average with multi-column. So you can do multi-column partition also. Okay. So suppose इधर तुम्हारा normal average था, ठीक है. It was a normal average. It is giving based on your these things. Suppose you have a column. I just inserted here, right?
वो आ गया मेरा इंसर्ट। ओके, तो इसकी जगह मैं दे रहा हूँ ये 8 करके, और ये लिख रहा हूँ नरेंद्र। ठीक है, ये दे रहा हूँ मैं 11,000। ऑर्डर आईडी इज 13। अगर मैं इसको रन करूंगा अभी, ठीक है, suppose if I run now with the month, now you'll see the difference. मैंने क्या किया, पार्टीशन सिटी में भी किया और मंथ भी किया। इसमें मंथ मतलब क्या, ये फंक्शन की वजह से पता है, दिखाता हूं। सिलेक्ट, और एक चीज दिखा रहा हूं तुम लोग को, अभी याद रखना ये चीज भी। मंथ क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है, डेट फंक्शन, डेट से निकालने के लिए कि डेट से मंथ निकाल दो मुझे। सपोज, अब देखना, so you can do many things in SQL, yeah, that's why I'm telling, give your time, don't waste your time। जब तक ये सीखोगे नहीं ना, देखो 7 मंथ पे था, 7 आ गया, बस मंथ दे रहा है, उसका मतलब कौन सा मंथ, 8 का है, 8 दे रहा। ठीक है, उस स्पेसिफिक डेट स्ट्रिंग से मंथ निकाल रहा है। so now you come to know what it is doing, it is actually partitioning the entire data table by city and month। और इसमें क्योंकि मंथ सबका 7 ही था, तो सबका 7 ही था, तो इसको पार्टीशन किया एन सिटी, ठीक है, इसका दे दिया। मंथ एन सिटी, इसका दे दिया। दिल्ली दिल्ली सेम ही है, एन सिटी दोनों कंडीशन मेट है ना, राइट। मंथ भी, इसमें 7 एन सिटी मेट हो रहा था, बट इसमें क्या आ गया, 8 एक एडिशनल आ गया। अगर ये 7 होता ना, तो इसको इसमें इंक्लूड कर लेता, ये 30,000 कुछ थोड़ा सा कम होता शायद ना, 12,000 कितना होता। अगर ये 7 होता, ये 8 है, तो इसका एक अलग ही रो बना दे कि भाई मंथ मेरा 8 मंथ का है और सिटी दिल्ली है। अगर दूसरा भी 8 मंथ का होता, तो उसको भी उसमें इंक्लूड कर लेता, 8 एंड दिल्ली में। सो इसमें एक ही रो है, तो इसीलिए इसका एक का ही एवरेज दिखा रहा है। दिस इज एवरेज ओनली। इफ यू हैव 2 रोज, सपोज इफ आई हैव टू एंटर 2 रोज, देन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, getting your point. Suppose I'll now enter 2 rows for that particular 8 month। okay, देखो इससे मतलब इतना इजी से समझा रहा हूँ। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इमीडिएटली टेल मी, मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग हो। देखो 11 एंड 10 एवरेज कितना हो गया, 10 500। देखो ये सेम मन का है, इसीलिए एक नया क्रिएट कर दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, ये दो भी यूज कर सकते हैं विद मल्टी कॉलम। इसमें लिख देता हूँ मल्टीपल कॉलम। ओके, और मंथ का मतलब क्या है, ये दे दो सब में, ताकि याद रहे कि ये एंड है सिंटेक्स का। ये मैं एग्जांपल दे दिया था कि मंथ क्या होता है। ठीक है, मिनिमम का हो गया, मिनिमम भी डबल कर सकते हो। देखते हैं मिनिमम डबल कर सकते कि नहीं यार। ठीक है, लिख लिख के देखो, वही बोल रहा हूँ, लिख लिख के देखने में कुछ नहीं जा रहा है। मिनिमम क्या है इसका, 4,000 आ गया। दिल्ली में हम लोग का इशू था। ठीक है, देखो इसमें 10,000 आ गया, इसमें भी मंथ का ले लिया। हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर डेट क्यों नहीं ले रहे, पता है? ऑर्डर डेट में तो सब डिफरेंट ही है ना, तो पूरा ही पार्टीशन कर देगा उसको। समझ में आया? अगर मैं ऑर्डर डेट को लिखूं, तो ये तो पूरा ही पार्टीशन, वो पार्टीशन कर देगा ना, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिक ऑर्डर है। दैट मींस फॉर द सेम ऑर्डर डेट गिव मी, ये दोनों सेम था, इसीलिए मुझे एक में दे दिया। बट सेम ऑर्डर डेट होने के बाद भी, नहीं नहीं ये सेम था ना, ये, हाँ ये मिनिमम ऑर्डर, तो इसमें से मिनिमम दे दिया मुझे, क्योंकि सेम ऑर्डर डेट में मिनिमम ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाकी का तो एक ही यूनिक है, पूरा सब यूनिक रिकॉर्ड्स है। इसीलिए हम लोग डेट में हम लोग हमेशा देखते हैं कि मंथ या कुछ बड़ा वो जो लेवल है उसमें हम लोग कर सकते हैं क्या, ताकि सबका थोड़ा सा सही से हम लोग को एनालिसिस करने के लिए डेटा मिले। सो नाउ इफ यू सी मिनिमम में भी, ठीक है, मल्टी कॉलम, ठीक है, मिनिमम। तो एक दो में लिख दे रहा हूँ ये मल्टी कॉलम वाला, तुम लोग खुद से देख लेना। यू नाउ अंडरस्टूड राइट? मिनिमम विथ मल्टी कॉलम पार्टीशन। ओके, सो एंड टाइल में जाता है अभी।
Entirely is little bit different. So what entile is doing? Entile, SQL entile is a Windows function that allows you to break the result set into a specified number of approximately equal groups और buckets. ये bucket बना के entile के साथ जो bracket है ना, इसे bucketing, like इसको bucket बना दे तो 4 bucket दो मुझे, 3 bucket दो. It assign each group a bucket number starting from 1 for each row in a group. The entile function assigns a bucket number representing to the group. अगर उस ग्रुप में अगर जैसे बकेट कर दिया, उस बकेट का जो नंबर होगा उस पूरे रोस में उस बकेट का वही नंबर आएगा. टू इज द रो बिलोंग्स टू. ओके, आई विल शो यू एन एग्जांपल. एंटाइल क्रिएट्स टाइल्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग फार्मूला. ये है फार्मूला. तो ये क्या बोलेगा देखो, नंबर ऑफ रोज इन द रिजल्ट सेट. लेट्स गो थ्रू एग्जांपल के साथ गो थ्रू करते हैं ताकि ज्यादा इजीली समझ में आए, क्योंकि पढ़ने से तो मुझे समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मुझे ही समझ में नहीं आता पढ़ने से ये सब. examples are always easy to understand, right? Suppose इसमें मेरे कितने नंबर है, 14 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक है, राइट? सो क्या बोल रहा है, 14 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ टाइल स्पेसिफाइड. एन में क्या स्पेसिफाइड कर रहे हो, अगर 4 कर रहे हो ना, 4 कर रहे हो तो 4 डिवाइडेड बाय क्या था, 14 डिवाइडेड बाय 4 3.5 आएगा. तो 4 करके आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पॉइंट अगर 5 आता है ना, जैसे उसको देखो. For example, we have total 10 rows and 4 tiles are specified in the query. So number of rows each tile will be 2.5. As a number, so rows should be whole number. ठीक है, not a decimal. क्योंकि रो तो डेसिमल नहीं हो सकता है ना. ये एक मतलब ये एक नंबर ही है. 1.5 तो थोड़ा हो सकता है क्या? Suppose this is one row, this is one row, right? It cannot be divided into half, right? एक और दो के बीच में कुछ रो डाल सकते हो क्या, इंसर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, राइट? तो इसीलिए इसमें डेसिमल काउंट नहीं होता है ना इंसर्ट में. जैसे तुम इंसर्ट कर दिया एक नया रो, इट विल कम इन 14.5, क्या वो 15 में आएगा, राइट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हेलो, Yes. यस. तो इसीलिए इसको अगर जो भी उसमें आता है डेसिमल पॉइंट में, उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है. तो SQL इंजन विल असाइन 3 इंस्टेड ऑफ 2.5 फॉर द फर्स्ट टू ग्रुप एंड सेकंड को 2 रोज दे देगा. ठीक है, पहले में मैक्सिमम ले लेता है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देता है जो था. सपोज एंटाइल बकेट्स मतलब उसमें नंबर लिखना है. ओवर पार्टीशन ये सब जो है इसको रहना तो ऐसे ही, चलो जाते हैं चलते हैं उसमें. ओके, लिखते हैं क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ऑर्डर बाय इसमें एक डाल दो. एंटाइल बकेट में मान लो मुझे इसमें 2 बकेट चाहिए. पार्टीशन बाय हटा दो पहले, नहीं तो देखेंगे पार्टीशन बाय भी देख लेंगे बाद में. ऑर्डर बाय देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या है, ये सब लिख के देखना पड़ता है, मतलब एक्सप्रेशन एसएनएम डिसाइडिंग. ओके, मल्टीपल नहीं चाहिए अभी फिलहाल, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही कर लेते हैं. ठीक है, सो नाउ इसको आगे ले जाओ यार थोड़ा सा. ओके, अब क्या प्रॉब्लम बता रहा है? ओके, कॉमा अभी सिटी वाइज ऑर्डर बाय सिटी, तो इसको हटा ही दो यार, पार्टीशन बाय लिख देते हैं. मतलब ये ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डरिंग कर रहा है. डिसाइडिंग लिखोगे तो देखना हैदराबाद ऊपर आ जाएगा. ठीक है, देखो हैदराबाद ऊपर आ गया, दिल्ली नीचे आ गया, वही है बस, इसमें कुछ इतना बड़ा होनी है. पार्टीशन बाय. ठीक है, लेट्स सी रन करने से हम लोग को पता लगता है, राइट? देखो, ठीक है, तो इसको लिख लो इसमें. भाई एंटाइल को भी चाहिए, क्या चाहिए भाई, ये चाहिए ओवर क्लोज. ठीक है, तो अभी ओवर ऑर्डर बाय कुछ भी लिख दो यार, सिटी कुछ भी लिख दो. अभी देखो मैंने सिटी वाइज पार्टीशन किया 2 ग्रुप में. ये क्या कर रहा है, एंटायर को पार्टीशन नहीं कर रहा है, ये सिटी को पार्टीशन किया. पहले एक सिटी को, चेन्नई को लिया, दिल्ली को लिया, और चेन्नई में इसमें 2 ग्रुप लगा दिया एंटाइल.
तो चेन्नई का 3 रोज था, हम लोग का वो क्या था फॉर्मूला? 3 divided by 2. हाँ 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। तो मैं क्या बोला था 1.5 नहीं लेगा, तो 2 ले लिया, पहला 2 ले लिया, सेकंड वाले में 1 आ गया, जो रिमेनिंग था हो गया। इसमें चलो अभी दिल्ली में कितने थे रोज? 1 2 3 4 5 6, 6 में 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो पहले में 3 ले लिया, दूसरे में 3 ले लिया परफेक्टली। इसमें क्या था 5, तो कितना आएगा 2 पॉइंट कितना आएगा राइट? 5 डिवाइडेड बाई 2 5.2। तो इसमें क्या पहले को 3 ले लिया, अरे क्या लिख रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। is तो equal to 2.5. पहले को 3 ले लिया। अब समझ में आ गया पार्टीशन Remaining क्यों? 2. व्हाट पार्टीशन इज डूइंग, यू अंडरस्टूड राइट? ओके, एंड विदाउट पार्टीशन क्या हो रहा है? जैसे इसमें ये हुई पार्टीशन, पार्टीशन ओके, पार्टीशन ठीक है, ये हो गया एंटाइल विद पार्टीशन, एंटाइल विद पार्टीशन ठीक है, partition. Okay, let's go to without partition now. So partition we do not need, that means do not need means what? You need partition on overall table. So by default it is taking, just like by default order by take ascending, right? Similarly by default if you do not give partition, it is taking entire table as a partition. So now if you see 2, it's coming to, if you 7 just 7 होगा. if जब तुम अगर इसको वो कर दो 4 कर दो 2 5 में कर तो दो, 7 7 होगा. हाँ 7 7 आ गया, 7 तक आ गया 14। अब 5 कर दिया तो 14 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 14 डिवाइडेड बाय 5 2.8। तो पहला 3 आएगा, दूसरा भी 3 आएगा, 3 3 आएगा, लास्ट में 2 आ गया। समझ में आएगा? ये बस पार्टीशन करने के लिए, कभी ग्रुपिंग करने के लिए काम आता है एंटाइल का। मैंने तो अभी तक यूज नहीं किया, इतना मेरे को अभी तक काम नहीं आया, बट इट इज यूजफुल। समटाइम इट लाइक सिनेरियो आएगा तो शायद कर सकते हो, है ना? ठीक है, एटलीस्ट पता लग गया ना क्या करते हैं इसमें। तो ये बकेट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग एंटाइल के थ्रू, वी आर क्रिएटिंग बकेट्स। पार्टीशन तो एंटायर टेबल में हो रहा है, एंटायर टेबल पार्टीशन को मुझे 4 बकेट में डिवाइड करो, जितने भी रोज है 4 बकेट में डिवाइड करो, 1 2 3 4। और द रूल इज नंबर ऑफ टोटल कॉलम्स 14 डिवाइडेड बाय कितने बकेट तुम डिफाइन किया उसमें एंटाइल में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, सो 3.5। और मैंने बोला था ना रोज कैन नॉट बी कमिंग एज ए 3.5 4.2 लाइक दैट, क्योंकि ये एक ही नंबर पे आता है, 1 या 2 या 3 या 4, राइट? 3.5 इज बिगर देन 3, सो फर्स्ट रो विल टेक एज ए 4। जो 3 के ऊपर आ गया ना तो 4 ले लेगा, तो इसमें देखना 4 ले लिया, इसमें भी 4 ले लेगा, इसमें भी इसमें फिर बाकी ये देख रहा है कि ओके नाउ आई कैन डिवाइड इनटू 3 3, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको 3 3 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आ गया एंटाइल का? यस ठीक है, मैं ये फाइल ये भी भेजूंगा, लेकिन सिंटेक्स तुम उधर से देख लो, इधर से देख लो, क्योंकि इसमें तुम्हारा परफेक्ट एग्जांपल के साथ है। उसमें मुझे पता नहीं, शायद कुछ गलत भी हो गया होगा कहीं लिखते लिखते। सही है आज के लिए? यस ना यू अंडरस्टूड ना ग्रुप बाय, और इसमें डिफरेंस क्या है? अभी इसका पेज ही है, देखो the requirement, if C says I only need city name, I do not need other column, मुझे बस सिटी के हिसाब से दे दो एवरेज या कुछ भी, तो यू कैन राइट इजीली ग्रुप बाय। अगर वो बोल रहा है आई नीड ऑल द रोज और मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए जिसमें एवरेज दिखे, सिटी वाइज एवरेज दिखे, तो फिर तुम ऐसे कॉलम लगा दो, सिटी के एवरेज दिखे पूरा कॉलम डाल दो, एक एक रो, बाकी इंफॉर्मेशन भी डाल दो जो आ रहा है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट टुडे। कुछ कुछ बाकी है, ठीक है, परसेंटाइल रैंक एंड ओके एंटाइल भी कवर हो गया। ये तो ऑलरेडी यू नो ओनली ना, एवरीथिंग यू नो। एनी डाउट ऑन दिस? एवरेज मींस एवरेजिंग आउट, मैक्स, मिनिमम, सम, काउंट, काउंट करके देगा उसको कितना काउंट है। सपोज काउंट का एक बार बता देता हूँ यार, काउंट एक दिखा देते हैं। काउंट में वही काउंट करके देगा, और क्या है काउंट। मुझे काउंट कर दो सिटी के हिसाब से कितने कितने काउंट है। 3 है, सिटी का 3 है, 9 है, ये भी बहुत वर्कफुल है। काउंट इज ए वेरी पावरफुल एग्रीगेट फंक्शन, बहुत सारे उसमें काउंट ही करते हो तुम। वो काउंट इज द वेरी
like helpful when you analyze something. Like if someone tell you, I pushed 10,200 rows. Can you check like if you get those 10,200, and also check if there is any duplicacy. So you need to run count only, right? Okay, just select count one from Windows this. Okay, you're counting. So when you count, it will give you 14 rows. Mostly count ही यूज होता है चेक करने के लिए कि एवरीथिंग डेटा इज फाइन और नॉट, डेटाबेस में जा जाके डेटा को जब पहले एनालिसिस करते हो, फर्स्ट थिंग इज क्या करते हो जब तुम पहले डेटा को देखते हो, राइट? क्या करते हो पहले? सबसे बताओ एक बार। टेबल एक दे दिया तुमको, तुम पहले क्या करोगे? मान लो तुमको एक टेबल दे दिया अब बताओ तुम पहले फर्स्ट थिंग क्या देखोगे टेबल में? क्या देखते हो भाई? देखते हो ना कितने कितने कॉलम, रिकॉर्ड है मेरे पास, कॉलम कितने रोज। कॉलम है, राइट? कितने रो है, कितने कॉलम है, वो देखते हो, राइट? अब तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ रोज है तो तुम एक एक करके देखते रहोगे। क्या इधर लिख दोगे ना कि भाई काउंट कर दो मुझे कितना है, 14, बस हो गया, राइट? तो ये काउंट वेरी यूजफुल वो टूल है एनालिसिस के लिए, ठीक है? तो मोस्टली तुम लोग ने ये सब, ये एवरीथिंग यू नो। इफ यू डू नॉट नो, गेट बैक टू मी, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा हूँ। तुम लोग को नहीं आता है, मेरे को पूछो। एंड दिस इज we these things we already covered almost। परसेंटेज रैंक देख लेंगे, बाकी सारा कवर्ड है, ठीक है? अरे कैसा लग रहा है घर? मैं कल बनाया घर घर और ये देखो, ये हम लोग गो थ्रू करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, लीड एंड लैग। ओके, देखेंगे, ये बहुत टाइम काम आता है जब हम लोग प्रीवियस रो को रीड करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल ऐसे में थोड़ा हिंट दे रहा हूँ क्या है लीड लैग, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया रहे नेक्स्ट टाइम जब आओगे। सपोज मुझे इसका प्रीवियस रो का अमाउंट देखना है, या तो इसका नेक्स्ट रो का अमाउंट देखना है, तो वो लीड एंड लैग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और इसको माइनस करना है, इधर अमाउंट डालना है, इसको माइनस करके इधर अमाउंट डालना है, ठीक है? उसको यूज करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है?